first part we have already discussed, which briefly was based on meaning of growth and development, definition of growth and development, limitations of the concept of growth, and difference between growth and development. I hope there is no doubt regarding those topics. Keeping that in mind, I will be starting with the concept of development today. We will be discussing two main topics in this video lecture. First one being characteristics of development and the other being limitations of the concept of development. Just like we saw limitations of the concept of growth, we also have limitations for the concept of development. Before starting off with today's lecture, if you remember, I ended up the first lecture of economics with a question that I asked you all. I hope you have searched the answer and you are ready with your answers. The answer is actually approximately, the question was, what was the growth rate of India's GDP before this pandemic and during the pandemic? The answer to this is, it was approximately expected at 4.7 prior to the pandemic, and then it fell down to around 3.1%. These data are approximate, so definitely some of you might have got a bit of different answers, but irrespective of what the data you have received, there has to be one concept clear, which is the growth rate of India's GDP prior to the pandemic was higher as compared to during the pandemic. This has to be very clear. कि pandemic के पहले जो growth rate थी उससे काफी कम हो गई है. But it is not completely because of the pandemic. Obviously, the lockdown is a reason. Production कम हो गया, बहुत सारे reasons हैं. लेकिन दूसरे भी बहुत सारे factors हैं. When you will search, you will find many reasons responsible for this downfall. Obviously, a greater reason is lockdown, but it is not the only reason. So here is your answer. Hope you have got the correct answer. Moving back to the lecture, characteristics of development. First characteristic of development is that it is a continuous process. What is meant by continuous process? So it is a slow process that we already know. We have gone through the differences of growth and development. उस डिफरेंस में हमने एक डिफरेंस का पॉइंट देखा था दैट डेवलपमेंट जो होता है वो स्लो प्रोसेस होती है और ग्रोथ जो है वो रैपिड फास्ट प्रोसेस होती है. सो इट इज अ फैक्ट दैट इट इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन स्लो तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है. स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इसीलिए बिकॉज ये क्वालिटी को ध्यान में रखती है. भले ही ये प्रोसेस स्लो हो, लेकिन जब डेवलपमेंट होने लगता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम आता है कंट्री के लिए, और वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है पॉजिटिवली अगर डेवलपमेंट हो रहा हो तो. जैसे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कंट्री में लिटरेसी रेट्स इंप्रूव होंगे, पॉवर्टी कम होगी, वर्कर्स ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस स्लो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग प्रोसेस. ऑल्सो इट इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन. मान लेते हैं कंट्री ने डेवलपमेंट स्टार्ट तो कर दिया, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को हेल्दी फूड देना स्टार्ट कर दिया, उनको एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर दिया, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीजें देना स्टार्ट कर दिया. तो स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, डेवलपमेंट बिगिन करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज इफ आई टेक एन एग्जांपल कि अगर एज ए स्टूडेंट मैं डिसाइड करता हूं कि मैं हर रोज 8 आवर्स स्टडी करूंगा, अगर आज मैं डिसाइड करता हूं कि आज से मैं 8 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट करता हूं, तो आज और कल या परसों तक या 1 वीक तक तो मैं हर रोज 8 आवर्स पढ़ लेता हूं, लेकिन वही चीज 1 साल तक रेगुलरली करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो सिमिलरली जैसे मेरा शेड्यूल में जो बनाता हूं एज ए स्टूडेंट, स्टार्ट करना ईजी है, मेंटेन करना डिफिकल्ट है, वैसे ही डेवलपमेंट जो एक स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करना तो इजी है लेकिन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड यूजुअली वो इनिशियल स्टेज में जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाता है तब वो इनिशियल स्टेज में फास्ट होता है लेकिन ग्रेजुअली स्लो हो जाता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, जो अगेन हमने डिफरेंस में देखा था कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों को इनकॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड करती है.
ईडी एब्रिविएशन यूज किया है मैंने, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आपको नहीं करना है। ईडी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीजेस व्हिच इज क्वांटिटेटिव। हम ये तो बोल देते हैं कि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम दोनों इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसका एग्जांपल यहाँ पे समझाया कि क्वांटिटी बोलते हैं तो कौन सा ऐसी चीज है जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं और क्वालिटी में क्या इंक्लूड करते हैं, एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाया गया। सो व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस, सो दैट इज इन नंबर्स, क्वांटिटी है तो वो हम डेवलपमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। सो व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस इट इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, सो इट इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस। एंड जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कंट्री में, गवर्नमेंट जब रिसर्च डेवलपमेंट पे ध्यान देती है तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और एट द एंड आउटपुट बढ़ तो रहा है, लेकिन जो आउटपुट बढ़ रहा है उस प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्ट गुड्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, और जब वही प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो वो हो जाता है क्वालिटेटिव कंसेप्ट। और ये दोनों चीजें डेवलपमेंट के कंसेप्ट में हम इंक्लूड करते हैं। थर्ड इज चेंज इन डिमांड। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा क्वांटिटेटिव चेंजेस लाइक इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्कर्स आप बढ़ाओगे इंडस्ट्रीज में, तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डेवलपमेंट अगर कंट्री में हो रहा है तो एजुकेशनल लेवल जो वर्कर्स या लोगों का है वो इंप्रूव होगा, इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ती है लोगों की तो क्या बढ़ेगा, क्या इंप्रूव होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब इफ आई हैव 10,000 इनकम तो मेरी प्रेफरेंसेस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज यूज करूंगा अपनी डेली लाइफ में वो थोड़े प्राइमरी बेसिक गुड्स हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी वही इनकम 10,000 से मान लेते हैं 50,000 हो गई, तो मैं अपना टेस्ट और प्रेफरेंस बेसिक गुड्स से शिफ्ट करके थोड़ा लग्जरी गुड्स पे जाऊंगा। ये क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्यों आई, लोगों ने बेसिक गुड्स के साथ साथ लग्जरी गुड्स का डिमांड क्यों स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज इनकम इंक्रीज्ड। इनकम इंक्रीज्ड, इनकम की वजह से लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ एंड दे शिफ्टेड देयर प्रेफरेंस फ्रॉम प्राइमरी एंड बेसिक गुड्स टू दैट ऑफ लग्जरी गुड्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम। So there is rise in income of the people due to economic development, which changes the taste and preference. T and P here means taste and preference. Repeating myself, abbreviation T and P यहाँ पे उसका मतलब है taste and preference. So income बढ़ने की वजह से लोगों का taste and preference change होता है. And initial stage पे जब development initial stage पे होता है तब लोग क्या कौन से goods डिमांड करते हैं, basic primary goods, daily necessities के goods. लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है, टाइम थोड़ा सा पास होगा, लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग लग्जरी गुड्स अलोंग विद द बेसिक गुड्स। फोर्थ इज लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। डायनामिक ओसीएम में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डायनामिक वर्ड का मतलब होता है जो चेंज किया जा सके। अब यहां पे लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। लेबर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर या कहीं पे भी, वो ज्यादा डायनामिक हो जाता है। डायनामिक होने का लेबर का मतलब होता है कि अगर एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है तो उसको मशीन चलाना भी आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबर बेनिफिट तब देता है कंट्री को जब वो एक ही काम में स्टिक टू नहीं। एक इंडस्ट्रियल वर्कर को अगर एक से ज्यादा काम आते हैं तो जब भी इंडस्ट्री चाहे उसको स्विच कर सकती है किसी और काम में। दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एज वेल एज इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो कंट्री के लिए जब लेबर डायनामिक होता है तो वो एक एसेट है, वो बेनिफिट है। और डेवलपमेंट क्या करता है, लिटरेसी इंप्रूव करता है, वर्कर्स को ज्यादा एजुकेट करता है, और ज्यादा एजुकेट करेंगे तो वो ज्यादा चीजें जानेंगे और ज्यादा चीजें कर पाएंगे, which makes labor even more dynamic than before. So economic development leads to increase in education of the labor. लेबर का जो एजुकेशनल लेवल है वो इंप्रूव होगा, लिटरेसी रेट्स इंप्रूव होंगे, which makes them more dynamic. इंक्रीज इन एजुकेशन की वजह से वो ज्यादा डायनामिक बन जाता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है वो इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। वो हमने यहाँ पे देख लिया, चेंज इन डिमांड। लोगों की इनकम बढ़ रही है डेवलपमेंट की वजह से, तो उनका जो डिमांड फॉर गुड्स है वो प्रेफरेंस तो चेंज हो ही रहा है कि भाई बेसिक गुड्स से लग्जरी पे जा तो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ेगी। पहले जितना कंज्यूम कर रहे थे विद लेस इनकम, अब विद मोर इनकम वो ज्यादा क्वांटिटी
कंज्यूम करेंगे. सो thereby I can say इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अलग अलग गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगती है, which leads to new enterprises, नई नई इंडस्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज, नए एंटरप्राइजेस मार्केट में आएंगे. बिकॉज प्रोडक्शन डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा एंटरप्राइजेस चाहिए. तो अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स, अलग अलग गुड्स की डिमांड बढ़ती है. उस इंक्रीज्ड डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए नए नए एंटरप्राइजेस मार्केट में आते हैं. और जब नए एंटरप्राइजेस मार्केट में आते हैं, सो दे इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली इफ देयर आर 5 एंटरप्राइजेस इन द मार्केट फॉर एन एग्जांपल, तो 5 एंटरप्राइज का जितना इन्वेस्टमेंट मार्केट में होगा उससे ज्यादा ऑब्वियसली 10 एंटरप्राइज का होगा. So when the enterprises, the industries, the factories in the market increases, they also increase the rate of investment and also capital formation. So capital formation का मतलब सिंपल है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है. The question is इन्वेस्टमेंट किस चीज में बढ़ाया जाता है? It can be anything. नई एंटरप्राइज आएगी, ज्यादा मशीन्स बाय करेंगे, ज्यादा मशीन्स के साथ ज्यादा टूल्स बाय करेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप होगी, नई प्रोडक्शन टेक्निक्स डेवलप होगी. So in short, investment बढ़ने के साथ साथ capital formation also will rise. Sixth is change in technology. इसी fifth point से relate करता है. When new enterprises comes up, they increase the investment. One of the sources to invest in is technology. आपको अगर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए, बेटर गुड्स चाहिए, मार्केट में दूसरे एंटरप्राइजेस के साथ कम्पीट करना है, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. इट इज मस्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट. और वो करने का एक सिंपल तरीका है टू चेंज द टेक्नोलॉजी, इंप्रूव द टेक्नोलॉजी. देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फायर एंड वाटर. जब डेवलपमेंट नहीं होता था सालों पहले, जब डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं थी, सारी चीजें आउटडेटेड थी, तो चीजें कैसे चलती थी? आउटडेटेड तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर टेक्नोलॉजी किस चीज पे बेस्ड होती थी? फायर एंड वाटर. जैसे कोल का यूज बाद में आया, कोल के पहले हम वुड बर्न करते थे, उससे जो फायर एमिट होती थी उससे हम चीजें रन करते थे. तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, हमने फायर एंड वाटर टेक्नोलॉजी को किससे रिप्लेस किया? विद कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी. सो ये दिखाता है शिफ्ट फ्रॉम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज, 7th पॉइंट का कोई हेडिंग नहीं है, एक सिंपल सा पॉइंट है, बस उसमें एक कीवर्ड आपको मिलेगा. द कीवर्ड इज दिस, सेल्फ मोटिवेटिंग. पॉइंट बहुत सिंपल है. जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, थोड़े टाइम बाद, इनिशियल स्टेज पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. डेवलपमेंट में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को टू मेक श्योर कि डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. लेकिन आफ्टर अ बिट ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? एट अ पर्टिकुलर स्टेज, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, वही डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाता है. सेल्फ मोटिवेटिंग मतलब एक स्टेज के बाद डेवलपमेंट खुद कंटिन्यू होता रहेगा, सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाता है. जस्ट इमेजिन, गवर्नमेंट इनिशियली जब कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नई पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी. सो इन शॉर्ट, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एफर्ट्स बहुत पुट इन करने पड़ते हैं, वो खुद नहीं होता है. लेकिन जब आप देखते हो कि आपके एफर्ट्स जो है वो आपको आउटकम दे रहे हैं, because of your efforts, if you can see the outcome in like in a sense, literacy improve हो रही है, health improve हो रही है, तो आप क्या करोगे? वो सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाता है. फिर वही चीज गवर्नमेंट मोटिवेटिंग तरीके से खुद करने लगती है. सो आफ्टर द स्टेज, डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग. जस्ट लाइक इफ यू स्टडी हार्ड, तो आपके मार्क्स इंप्रूव अगर होते हैं, तो आप उसके बाद एफर्ट्स, यू नो, हैप्पीली यू विल पुट इन एफर्ट्स टू स्टडी इवन मोर, बिकॉज यू हैव सीन द आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स. अगर आप एफर्ट्स लगाते हो, आपको उसका आउटकम दिखता है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब वही काम आपके लिए सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाएगा. मतलब वही चीज आपको मोटिवेट करेगी उसमें आगे बढ़ने के लिए. सो डेवलपमेंट इज वन सच कंसेप्ट वेयर इट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. So here we are done with 7 different characteristics of development. Next up we have limitations of development. There are only 3 limitations. तो या तो 2 mark का question या तो 3 mark का question, not more than that. 2 या तो 3 mark question. And to the point.
2 मार्क का है 2 पॉइंट्स लिखो, 3 मार्क का है 3 पॉइंट्स लिखो, कोई डबल पॉइंट्स के रिक्वायरमेंट इस टॉपिक में नहीं है. When we talk about the characteristics of development, we have total 7 points. So maximum, as I say in every lecture, it can come for a 5 mark question. This is the maximum. Any question which can be asked in 5 marks can be asked in 2 marks or 3 marks also. But when a question is asked in 2 marks, you need to answer to the point. 2 points लिखने हैं. For example, एग्जाम में अगर पूछा जाता है 2 मार्क क्वेश्चन में एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको कोई भी 2 डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देने हैं हेडिंग के साथ. 3 मार्क में पूछते हैं तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट 6, कीपिंग इन माइंड द टाइम टू राइट द एग्जामिनेशन. If not 6, at least 5. And if the question is of 5 mark, कोई भी 5 आपको to the point लिख देना. Okay. Next topic we have is limitations of development as a concept or indicator. First limitation of the concept of development is that economic development indicates growth of the nation, that is progress of the nation. एक कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो कहां से पता चलेगा? हमें डेवलपमेंट से पता चलता है. इट शोज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. एक कंट्री इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रही है वो हमें डेवलपमेंट से पता चलेगा. कैसे? बिकॉज हमने देखा वो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को इंक्लूड करती है. सो एक कंट्री ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है वो हमें डेवलपमेंट से पता चलता है. बट यहां पे आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होती है. बट it cannot actually show human development. It cannot become an index of human development. Human development क्या होता है? 10th standard का concept पढ़ चुके हो, सिर्फ रिकॉल करवा देता हूं. Human development का मतलब होता है लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल कैसी. When I say quality of life, वो इतना वास्ट कंसेप्ट है कि उसको डिफाइन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और उसको डिफाइन किया भी नहीं गया है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इतना वास्ट कंसेप्ट है, डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं बन सकता है. इसका मतलब सिर्फ डेवलपमेंट देख के हम नहीं बता सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है कि खराब है. सो ये एक इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है बिकॉज ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी नहीं बताएगा. डेफिनेटली ग्रोथ से बेटर है बट बेस्ट नहीं. दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन या फाइनल आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. एक कंट्री में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है कि खराब है वो इससे आइडिया डेफिनेटली आएगा, वो मना नहीं कर रहा हूं. बट जो आइडिया आएगा वो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा मिसमैच करेगा. एंड देयरबाय इट इज नॉट एन आइडियल, मतलब एक परफेक्ट कंसेप्ट नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट जानने के लिए. दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन. Second limitation is economic development cannot be measured as economic growth. Economic growth जो quantitative concept है और development जो qualitative and quantitative दोनों है, उसमें से हमने difference में देखा था growth is easy to measure, development is difficult to measure. वही इसकी limitation है कि growth जितना easily measure हो जाता है उतना ही डिफिकल्ट है डेवलपमेंट को मेजर करना. इसका कोई मेजर है ही नहीं जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंट्री को ये कैलकुलेट करना है कि 2019-20 में इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में से प्रोडक्शन कितना है तो वो इजी है. तो ये क्या है? ग्रोथ, आउटपुट, क्वांटिटी. तो ग्रोथ इज इजी टू मेजर, उसमें कोई डाउट नहीं. नंबर्स कैलकुलेट हो सकता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है. डेवलपमेंट में ऐसी कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं. हाउ विल यू मेजर लिटरेसी ऑफ पीपल? एंड इवन इफ यू मेजर इट कैन नॉट बी परफेक्ट. थर्ड लिमिटेशन इज यूजुअली व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स. अभी तक हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना हमने पढ़ा है हमने इतना तो जान लिया है कि व्हेन आई से दैट इन अ कंट्री डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, उसका मतलब होगा वहां पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होनी चाहिए बिकॉज वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है. तो अगर मैं बोलूं कि डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, उसका एक मतलब होगा कि वहां पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होनी चाहिए. ये एक बेसिक क्राइटेरिया हमारे पास है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट देयर इज अ
loophole in this particular point कि मैं ये तो बोल रहा हूं कि कंट्री में डेवलपमेंट होने का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, बट इसको मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं बाय अ फैक्ट ऑफ द कंट्री वी लिव इन. इंडिया में विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन एंड ऑल्सो डेवलपिंग नेशन, मतलब इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने क्लेम कर दिया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. सो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन लाइक इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आंसर इज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन विच इज अ फैक्ट. तो द क्वेश्चन इज, अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो क्या लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. बट क्या हो रही है? नहीं. अगर हो रही होती तो वी कुड नॉट फाइंड सच ह्यूज proportions of poverty, unemployment and other social problems in the country. So when usually economic development takes place, so the standard of living also improves usually. But when we take an example of India, in India economic development is taking place, but there is not much improvement in standard of living of people. डेवलपमेंट तो हो रहा है इंडिया में, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना इंप्रूव होना चाहिए इतना इंप्रूव हो नहीं रहा है. तो इससे लिमिटेशन क्या मिलती है कि हमेशा वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम ये हमेशा नहीं बोल पाएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रही है. इट कैन नॉट बी सेड लाइक दैट. सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगेन अ क्विक रिविजन, क्या क्या पढ़ा हमने. डेवलपमेंट के दो कंसेप्ट्स पढ़े. एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? टोटल 7 पॉइंट्स. उसके बाद हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें कितने पॉइंट्स पढ़े? 3 पॉइंट्स पढ़े. कैरेक्टरिस्टिक्स कितने मार्क्स में आ सकता है? 2, 3 या तो 5. लिमिटेशन मैक्सिमम कितने मार्क्स में आ सकता है? ओनली 3 मार्क्स. उससे ज्यादा लिमिटेशंस नहीं आ सकते हैं. सो हियर वी एंड the second part of chapter number 2, indicators of growth and development. I hope you have understood. I'll get back with a question just like the previous video lecture. Thank you so much. Hey guys, this is Rohit Dalia, back with the second part of chapter 2 of economics, class 12 Gujarat board, that is indicators of growth and development. This video is specifically for students who would like to look at the content that I wrote on the board, which might not be clear otherwise. So quick revision with notes. This will help you write down the notes in your books properly. Characteristics हमने देखी. First continuous process देखी. It is a slow but strong process. It is easy to start but difficult to maintain and is usually fast initially but gradually slows down. Then we saw that it includes qualitative and quantitative changes. Means, for an example, in economic development, output increases, which is quantitative, and quality of product improves, which is qualitative change. There is more of qualitative change in economic development. Third characteristic was change in demand. There is rise in income of the people due to economic development, which changes their T and P stands for taste and preferences. Next point is, in initial stage of economic development, the demand of basic good rise, and then the demand for luxury goods also starts rising. Fourth characteristic is labor becomes more dynamic. What happens is, economic development leads to increase in education of labor, which makes labor more dynamic. Fifth characteristic is increase in capital formation. Economic development leads to increase in demand for various goods, which leads to new enterprises coming up, due to which rate of interest and investment and capital formation rises. Sixth characteristic, change in technology. There is a shift from fire and water based technology to coal and iron based technology, which helps in faster economic development. And the last one, which has no head point, वो पॉइंट सिंपल है, विच इज आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वाज लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट लिमिटेशन हमने देखा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. इट शोज डेवलपमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री, बट
it cannot actually show human development. It cannot be the index of human development. सेकेंड लिमिटेशन जो हमने देखी थी वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. It is difficult to measure economic development as it includes changes taking place in the society. It is very difficult to derive the measurement for this. This means economic development. And the last one was, usually when economic development takes place, SOL, which stands for standard of living, improves. In India, economic development is taking place, but there is not much improvement in standard of living of people. इससे क्या पता चलता है? That we cannot say economic development means improvement in standard of living. So today's question for you guys, just like we had a question in the last lecture, is in the recent speeches of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, we heard a couple of words again and again that he spoke intentionally, which was Atmanirbhar Bharat, independent India. The question is for you. There are a couple of questions, two questions. First, what is meant by this particular term? What is exactly Atmanirbhar Bharat? Obviously, it is independent India, but what does it mean? And the main question is why? Why specifically, not any other time did he choose to speak this word, but only during the lockdown? That too at a critical point of time where the lockdown was already on. So why did he address the whole nation with this particular word? Why is the question for you guys. Get back with your answers. Thank you.